Good morning, student. Welcome you all. So, how are you all? Hope you all are doing very great. So, today I am going to teach you a second part of chapter 4, that is a truly beautiful mind. So, as you all know, that the first half of the story we have already covered in the previous video. So, in that video, we read about the Albert Einstein, means when he was born, or was he considered as a normal human being, or as some means like other children, or he was an extraordinary person. So he would not be successful. Actually इनके जो एक टीचर थे, इनके टीचर ने one day his teacher tell his parents that he would not be successful whatever he does in his life. ऑलराइट, बट आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है. बट व्हेन ही वाज इन म्यूनिच, ही लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक because he didn't like the regimentation and the rules over there, and he decided to leave that school forever. So after a prolonged discussion with his parents, so that he came to a conclusion that he continued his education in Switzerland only, and he left that school, means the Munich school. All right, so let's see now what happened after that. Let's read the story. So fifth points we have already discussed in the previous video. Now we'll start from the sixth paragraph. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. So, as you all know, जो आइंस्टीन है वो बहुत गिफ्टेड चाइल्ड है, वॉज वेरी गिफ्टेड चाइल्ड, एंड ही लव मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्ट इन फिजिक्स. उनका जो मैथमेटिक्स है वो बहुत लव करते थे, उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में था. एंड आफ्टर स्कूलिंग, मीन्स जो उनकी स्विट्जरलैंड में उनकी स्कूलिंग थी, फर्स्ट ही स्टार्टेड इन म्यूनिक स्कूल, बट ही left that school and he joined in Switzerland school, means he started studying in Switzerland school. And after the schooling, he decided to study at a university in Zurich. कहाँ पे वो पढ़ने लगे? Zurich के एक स्कूल में वो पढ़ने लगे. सी आपको पिक्चर देख रहे हैं इनके, एक तो यंग एज की पिक्चर्स हैं. जस्ट अ सेकेंड, आई वॉन्ट टू ड्रैग इट. ओके, सो देर आर टू पिक्चर्स. ये जो पिक्चर है इनका, आइंस्टीन इन 1900 at the age of 21. So when he was 21, he looked like this. He exactly looked like this, जैसे आप पिक्चर में है. एंड दिस आइंस्टीन, जैसे हम अभी जानते हैं, मीन्स यही पिक्चर अभी काफ़ी यही पिक्चर्स हमने देखे हैं अपने बुक्स में. सो आइंस्टीन इन 1955, आज भी रिमेंबर हिम नाउ. सो ये उनके दो पिक्चर्स हमें given है. All right. So, but science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mosaic. So, here the word walrus means शेप ऑफ मॉस्टिक, यानी उनका जो शेप था मॉस्टिक का, उसको कहते हैं वॉलरस. ऑलराइट. सो ये कह रहे हैं कि ये जो यंग पर्सन है वो केवल यही नहीं है कि वो केवल एक डैशिंग यंग मैन थे और वो सिर्फ साइंस पे ही फोकस करते थे, बट अपार्ट फ्रॉम द साइंस और फिजिक्स उनका इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में भी था. लेट्स सी. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marek, whom he found to be a clever creature. So one of his fellow student, that is Mileva Marek जो थी, उनसे इनका इंटरेस्ट हुआ because she was a very clever creature according to him, according to Albert Einstein. और उनका काफ़ी इंटरेस्ट था, वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे. दिस यंग सर्व, सो हियर द वर्ड सर्व मीन्स Siberian, because she was a Siberian, she belongs to the Siberia. So it's का जो इनको क्या कहा गया फिर? Serb. So Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो ये कह रहे हैं कि वो क्या थी, वो उस ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में इसलिए उन्होंने
एडमिशन लिया था बिकॉज यूरोप में वहाँ पे कुछ ही यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे विमेंस को डिग्री मिलती है. ऑलराइट, सो आइंस्टीन सॉ इन हर एंड एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. सो हियर द वर्ड, अब ये जो वर्ड है एले, एले यहाँ पे क्या है, अ फ्रेंड और एन एसोसिएट. वो कह रहे हैं कि ये जो गर्ल है मीन्स जो मलाइवा है वो इनकी एक अच्छी एसोसिएट बन गई थी बिकॉज शी ऑल्सो अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. वो फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट थी. दोज पीपल इन हिज फैमिली एट द यूनिवर्सिटी मीन्स जो फिलिस्टीन्स की तरह ही जो पीपल्स थे उनकी फैमिली में वो सब भी कुछ ऐसे ही थे. Just a second, and there is some technical issues. Okay. So उन्होंने कहा जैसे फिलिस्टीन्स क्या होते हैं वो उन्हें लाइक नहीं करते बिकॉज जो फिलिस्टीन पीपल हैं दे डजंट लाइक द आर्ट, म्यूजिक एंड सम लिटरेचर. सो ये बिल्कुल भी वैसी नहीं थी बिकॉज वी नो दैट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ वेरी गुड वायलिनिस्ट. सो दैट्स वाई फिलिस्टीन्स को लाइक नहीं करते थे और जो गर्ल थी मलाइवा वो एग्जैक्टली उनके ही जैसी थी. ऑलराइट. So in 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. So when he was 21 years old, Albert Einstein, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही वॉज अनएम्प्लॉयड. मीन्स ग्रेजुएशन के बाद भी वो क्या रहे थे, अनएम्प्लॉयड रहे थे. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट. सो तो उन्होंने क्या करा कि एक क्लासेस एज अ टीचिंग असिस्टेंट उन्होंने क्लासेस लेना स्टार्ट करी, प्राइवेट लेसन, गिव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. सो मीन्स जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और अनएम्प्लॉयड थे तो इन बिटवीन दैट ही यूज्ड टू टेक क्लासेस and after that he got a job in 1902 as a technical expert in a patent office in Bern. So अब 1900 से 1902 तक in between that those उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, क्लासेस ली थी and after that उनको एक पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट मीन्स a document which gives the rights of an invention to an inventor. मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसको आपको क्या करना है, एक राइट्स होते हैं एक इन्वेंटर को किसी और इन्वेंशंस को देने होते हैं तो पेटेंट होता है. मतलब एक पेटेंट दूसरे पेटेंट को देना था. वो बर्न में उन्होंने ये काम स्टार्ट करा. सो व्हाइल ही वाज सपोज टू बी एक्सेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, सो जब वो एक्सेस कर रहे थे अदर पीपल के इन्वेंशंस को, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलप हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. बट इन बिटवीन दैट टाइम जो आइंस्टीन थे वो अपने आइडियाज़ भी डेवलप करते थे, ठीक है, बट इन सीक्रेट. ऑलराइट, वो किसी से शेयर नहीं करते थे. ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स. तो वो थोड़े मजाक में ही उनके ऑब्वियस है वो एक ऑफिस में थे तो उनके पास एक टेबल होगा, टेबल के अंदर जो डेस्क है उसके अंदर एक ड्रॉअर भी होगा, उस ड्रॉअर में वो अपने पेपर्स वगैरह वगैरह रख लेते. सो उनको वो क्या कहते थे, और जो भी वर्क करते थे वो सब उस पर होता था और उस चीज़ को वो कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. यानी उसको क्या कहा गया कि वो क्या है, एक ब्यूरो है थियोरेटिकल फिजिक्स का, क्योंकि वो जितनी भी थ्योरीज हैं फिजिक्स की वो उसमें पुट करते थे. ऑलराइट, बिकॉज he means he put all the theories in that drawer. So one of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity. So we all know that वो किसके लिए फेमस हुए थे, द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आप सबने भी पढ़ी होगी या पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. मीन्स जो टाइम और डिस्टेंस है वो क्या नहीं होता, मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, मीन्स द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द टाइम और डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, सेम नहीं होता. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट हियर? मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स. मीन्स जो मेजर है तो एक दूसरे से वो हमेशा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. So अब ये क्या था कि उन्होंने एक perfectly accurate clocks का एक एग्जाम्पल दिया कि
जब एक परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, मतलब दो क्लॉक रखी, क्लॉक का हमने दोनों में टाइम रखा 10-10, दोनों में फिक्स टाइम था, ठीक है। वो अब अकॉर्डिंग टू अस कि वो एक साथ ही टर्न होगी, एक साथ ही घूमेगी, एक साथ ही टाइम लगाएगी, बट जब हम उसे अलग अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे, अलग अलग जगह पे ले जाएंगे, और जब उन्हें वापस लाया जाएगा तो उनका जो टाइम होगा वो डिफरेंट, राइट। तो ये जो दोनों टाइम होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिविटी। सो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। सो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है जो बहुत फेमस है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है, तो वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है। सो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला के बताए, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E stand for energy and M for mass and C for the speed of the light in the vacuum about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। सो अब ये मीन्स जो ये C की जो स्पीड दे रखी है अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये रखकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स while solving your equation now, he gave us some other example also. So जो एक बॉक्स में गिवन है वो भी हम देख लेते हैं। When you sit with a nice girl for 2 hours, मीन्स जब हमने वो क्लॉक का एग्जाम्पल देखा था, सेम वैसे ही यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है कि जब आप एक नाइस गर्ल के साथ 2 आवर्स तक बैठे हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। सो ऐसा लगता है कि हम 2 मिनट के लिए बैठे हैं। When you sit on a hot stove for 2 minutes, जब आप हॉट स्टोव पे बैठे हो फॉर 2 मिनट्स ओनली, सो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स फॉर अस। तो कैसा लगता है कि जैसे 2 घंटे तक बैठा ले, बिकॉज क्वाइट टफ फॉर अस। तो दैट्स अ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसी को एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि यही क्या है, रिलेटिविटी है। ऑलराइट। So, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing. So, here the word means unrevealing means starting to fail. मतलब fail means his personal life is started to fail. अब start fail होना हो गई थी। Why? Because Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study. Because Albert wanted his marry with his fellow mates, who is Mileva, after finishing his studies, means after the college, but his mother was against it. But the Albert Einstein mother was totally against it. Why? Because she thought Mileva was who was 3 years older than her son. Because Mileva जो थी वो 3 years older थी to Albert Einstein से। So was too old for him, अभी उनके लिए बहुत ज़्यादा old था। And apart from this, she was also bothered by Mileva's intelligence, because she was as intelligent as Einstein. That is also a main reason, because क्योंकि ये भी बहुत इंटेलिजेंट थी जैसे आइंस्टीन है। शी इज बुक लाइक यू, तो वो उनके लिए क्या, एक बुक है। मीन्स आइंस्टीन भी एक बुक है क्योंकि वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। और अब साथ में जो मिलाइवा है, अगर वो भी आ जाती तो वो भी एक उनके लिए क्या हो जाएंगी, बुक हो जाएंगी। सो हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। तो उसकी मदर ने क्या डिसाइड किया कि आइंस्टीन को क्या करना चाहिए कि जो वेडिंग के जो ये वो सोच रहे हैं उसे अब यहाँ पे फिनिश कर देना चाहिए। सो टुडे वी विल डन with these chapter, means आज तक हम यही करेंगे, and we will continue it in our next video. Till then, take care yourself and thank you for watching.